Assalamu alaikum students, welcome to my channel Lectures with Fatima Khalid. Today we are going to start chapter number 2, Solving a Biological Problem. Previous chapter was all related to biology. Today we are going to start second chapter, Solving a Biological Problem. Science is the systemized knowledge derived from the observations and experiments. These experiments are carried out to determine the principles about how nature operates. Scientists like chemists, biologists, and physicists use the same scientific method to make and test new theory. मतलब कि जो साइंटिस्ट हैं जैसे बायोलॉजिस्ट हो गए केमिस्ट हो गए उनको जो है किसी भी चीज़ को साइंटिफिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक ऑपरेशनल मेथड की ज़रूरत थी जिसे हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड. अब बायोलॉजिकल मेथड के फर्दर कुछ स्टेप्स होते हैं वो हम इस पे स्टडी करेंगे. वी विल स्टडी मलेरिया एज एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स इन डिटेल. अब मलेरिया एक बीमारी है, एक डिजीज़ है जो कि मॉस्किटोज़ की वजह से अकर होती है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे एज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड. Questions about living things have provided problems that man has investigated to aid his own survival and to satisfy his desire to know. The scientific method in which biological problems are solved is termed as biological method. अब scientific method जिसमें biological problems को हम solve करेंगे step wise, that is called biological method or scientific method. It comprises the steps a biologist adopts in order to solve a biological problem. Students, this long question is very important. What is biological method? Describe its steps in detail. This long question can come in exams. It comprises the steps a biological adopts in order to solve a biological problem. Biological method has played an important part in scientific research for almost 500 years. मतलब biological method was introduced कि 500 years तक वही जो है वो हमारे लिए useful है. From Galileo's experiment in 1590s to current research, the biological method has contributed to the advancements in medicine, ecology, technology, etc. अब biological method जो है वो इन biologists के लिए इतना useful था कि उसने medicine में, ecology में, technology में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है. बायोलॉजिकल मैथड ऑल्सो इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ डाटा फॉर पब्लिक यूज़. यानी इसमें जितनी भी क्वालिटी है किसी चीज़ की उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं. नाउ वी हैव yellow box over here where there is written man has always been a biologist. He had to be a biologist in order to live. Early in history he was a hunter of animals and gatherer of fruits, seeds, roots, etc. The more he knew about animals and their habitat, the more successful hunter he was. The more he knew about plants, the better he distinguished between edible and non-edible plants. यानी मैन जो है वो खुद एक बायोलॉजिस्ट है. अर्ली लाइफ में ये होता था कि जो मतलब एक हंटिंग भी कर सकता था और जो है वो डिफरेंट प्लांट्स भी गैदर करते थे ताकि उनको पता चल जाए कि कौन से प्लांट्स हैं वो खाने वाले हैं और कौन से एनिमल्स जो हैं वो हंट करने वाले हैं. सो डेफिनेटली मैन वॉज ऑलवेज अ बायोलॉजिस्ट. Next topic is biological problem, hypothesis, deductions, and experiments. In biology, like other sciences, new things are being discovered and long held theories are being modified or replaced with better ones or more data knowledge is accumulated. This happens when biologists recognize some biological problem and go for its solution. In solving a biological problem, biologists take following steps. Now, these are the steps. रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कि व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसका हमने कंक्लूजन निकालना है उसको सॉल्व करना है. देन ऑब्जर्वेशंस, देन हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, डिडक्शन. यानी पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे फिर उसके बाद हाइपोथेसिस डिड्यूस करेंगे और उसके बाद डिडक्शन होगी. नेक्स्ट वी हैव एक्सपेरिमेंटेशन यानी इसके ऊपर प्रैक्टिकल वर्क होगा, एक्सपेरिमेंट करेंगे. देन समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, क्रिएट टेबल्स, ग्राफिक्स, मतलब to show the different ratios as well, and then reporting the results. Now we will study the details of these steps which are as following. Recognition of the biological problem is the first step.
Biologists go for adopting biological method when they encounter some biological problem. Biologists तब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं जब उन्हें कोई एक बायोलॉजिकल या साइंटिफिक प्रॉब्लम हो. A biological problem is a question related to living organisms that is either asked by someone or comes in biologist's mind by himself. यानी खुद से अगर कोई चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके बारे में ऑब्जर्वेशंस लगाएंगे और फिर उसके बाद जो है हमारे माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि इसका साइज़ कैसा है, ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया, हाउ इट विल ग्रो, हाउ इट विल रिप्रोड्यूस. तो मतलब उसके लिए हमें एक बायोलॉजिकल मेथड की ज़रूरत है ताकि हम अपनी क्वेश्चनिंग की जो है वो सॉल्यूशन निकाल सकें. फर्स्ट हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था. नेक्स्ट स्टेप इज़ ऑब्जर्वेशंस. एज द फर्स्ट स्टेप in solving a biological problem, biologists recall her previous observations or make new one. Observations are made with 5 senses of vision, hearing, smell, taste and touch. यानी biologist जो है वो observation कैसे करते हैं अपनी 5 senses की मदद से, like vision, hearing, smell, taste और touching से. इस तरह observations जो हैं वो बनाई जाती हैं. ऑब्जर्वेशंस में भी बहुत क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, यानी ऑब्जर्वेशन की क्वांटिटी भी देखी जाती है और क्वांटिटी भी देखी जाती है कि कितनी मिकदार में कौन सी चीज़ प्रेजेंट है. क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव ones because the former are invariable and measurable and can be recorded in terms of number. यानी जो हमारे पास क्वांटिटेटिव है वो ऑब्जर्वेशन हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट होती है. फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्वांटिटी गिवन है, हम उसको काउंट करके उसकी एक्यूरेट जो है कैलकुलेशन मेंशन कर सकते हैं. तो दैट इज़ मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव. ठीक है. फिर उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर गिवन बिलो. अब यहाँ पे ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कौन सी होती हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कौन सी होती हैं. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन. सो इन पिंक बॉक्स the difference is mentioned. The freezing point of water is colder than boiling point. A liter of water is heavier than a liter of ethanol. मीन्स ये एग्जाम्पल दी हुई है और ऊपर इसकी डिफ्रेंसिएशन लिखी हुई है, इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है. देन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन. द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड. वहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का बस क्वालिटेटिव में ये लिखा हुआ है कि कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट, ये एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है. और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का यहाँ पे लिखा हुआ है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये क्वांटिटी के लिहाज से बिल्कुल एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन है. फिर अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथेनॉल, यानी कि उन्होंने बताया कि बस ये हैवियर है. पानी जो है ना, 1 लीटर जो वाटर है वो 1 लीटर एथेनॉल से भारी है, यानी हैवियर है, उसका वेट हैवी है. अ लीटर ऑफ वाटर वेज 1000 ग्राम्स एंड अ लीटर ऑफ एथेनॉल वेज 789 ग्राम्स. यहाँ पे वाटर का वेट उन्होंने लिखा हुआ है कि 1000 ग्राम्स है, ये क्वांटिटेटिव आ जाता है, और एथेनॉल का जो है वो 789 ग्राम्स है. ऑब्जर्वेशंस आल्सो इंक्लूड रीडिंग एंड स्टडिंग व्हाट अदर्स हैव डन इन द पास्ट बिकॉज साइंटिफिक नॉलेज इज़ एवर ग्रोइंग. अब किसी भी चीज़ की कोई भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, हमने उसकी ऑब्जर्वेशन लगानी है तो पहले हम पास में जाते हैं कि पिछले बायोलॉजिस्ट केमिस्ट ने उसकी क्या ऑब्जर्वेशन की थी और हमारी क्या बन रही हैं. तो दोनों का कंपैरिजन करते हैं और फिर जो बिल्कुल एक्यूरेट होती है देन फर्दर स्टेप इज टेकन. Biologists can't usually check every situation where a hypothesis might apply. Let's consider a hypothesis. अब यहाँ पे हम एक हाइपोथेसिस ले रहे हैं. ऑल प्लांट्स हैव अ न्यूक्लियस, यानी जितने भी प्लांट्स हैं उनका न्यूक्लियस है. बायोलॉजिस्ट कैन नॉट एग्जामिन एवरी लिविंग प्लांट एंड एवरी प्लांट दैट हैज़ एवर लिव्ड टू सी इफ़ दिस हाइपोथेसिस इज़ फॉल्स. यानी बायोलॉजिस्ट इस चीज़ का एग्जामिनेशन नहीं कर सकते कि एवरी लिविंग प्लांट का भी और एवरी प्लांट दैट हैज़ एवर लिव्ड, यानी इससे पहले जो प्लांट्स रह चुके हैं, कि ये देखने के लिए कि हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स है या ट्रू है. इंस्टेड बायोलॉजिस्ट जनरेट डिडक्शन यूजिंग रीजनिंग फ्रॉम द अबव हाइपोथेसिस. अ बायोलॉजिस्ट कैन मेक द फॉलोइंग डिडक्शन इफ एग्जामिन
cells from a blade of grass, then each one will have a nucleus. यानी कि हम एक ग्रास की स्टिक ले लें तो उसको हम लोग देखें तो उसके अंदर न्यूक्लियस ज़रूर प्रेजेंट होगा उसके सेल में, ठीक है। नेक्स्ट एंड थर्ड स्टेप इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशंस डू नॉट बिकम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जो ऑब्जर्वेशंस हम लगाते हैं वो फाइनल ऑब्जर्वेशंस नहीं होती, वो तो हम लोग डेफिनेटली ये कंक्लूड कर रहे होते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, अनटिल दे आर ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेटेड टू अ क्वेश्चन। अनटिल एंड अनलेस, जब तक वो फाइनल नहीं हो जाती कि वाकई में ये हमारी ऑब्जर्वेशन एक चीज़ के बारे में बिल्कुल एक्यूरेट है और हम फाइनल अपना डिक्लेरेशन दे देते हैं। बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजेज his or her and others' observation into data, form and constructs a statement that may prove to be the answer of the biological problem under study. This tentative explanation of observation is called a hypothesis. Here is the definition of hypothesis. It may be defined as the proposition that might be true. A hypothesis should have the following characteristics. अब hypothesis में क्या क्या important चीज़ें होनी चाहिए? It should be a general statement कि जो हम hypothesis conclude कर रहे हैं वो एक general statement होनी चाहिए. Then it should be a tentative idea. वो बिल्कुल एक accurate idea होना चाहिए. It should agree with the available observations, यानी वो जो observations हमने की हैं किसी चीज़ के बारे में तो वो उनसे मिलती जुलती हो. It should be kept as simple as possible. और जैसे कि all cells have nucleus, all plant cells have nucleus, तो ये सिर्फ एक ऑथेंटिक सी बात है, तो ये है कि छोटी सी सिंपल स्टेटमेंट है ये. Then it should be testable and potentially falsifiable, यानी कि ये है कि हम जो हाइपोथेसिस को हमने डिक्लेयर किया है वो जो है हम उस पर टेस्ट भी कर सकते हैं और उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि मे बी इट्स फॉल्स. इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी अ वे टू शो द हाइपोथेसिस इज़ फॉल्स, अ वे टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस, यानी कि हमारे पास इसका एक अदर ऑप्शन भी होना चाहिए कि हम अपनी हाइपोथेसिस को डिक्लेयर कर सकें कि ये गलत भी हो सकती है. अ ग्रेट डील of careful and creative thinking is necessary for the formulation of a hypothesis. Biologists use reasoning for formulating a hypothesis. ठीक है, उसके बाद ये करेक्टरिस्टिक्स थी हमारे पास एक healthy hypothesis की. If a short question comes कि what are the characteristics of a hypothesis, then you are going to mention these characteristics. Next we have deductions. In the next step, biologists draw deductions from the hypothesis. Deductions are the logical consequences of hypothesis. For this purpose, a hypothesis is taken as true and expected results deductions are drawn from it. मतलब कि अगर आपके पास एक स्टेटमेंट आ गई है, हाइपोथेसिस आ गई है, उसके बाद हम उसको उसकी रीजनिंग करेंगे और उसके बाद डिडक्शंस जो हैं वो उसके अंदर से कंक्लूड करेंगे. जनरली इन बायोलॉजिकल मैथड इफ़ अ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस इज़ ट्रू, जैसे कि हमारी ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल एक्यूरेट थी, हमारे पास हाइपोथेसिस की सिंपल स्टेटमेंट भी एक एक्यूरेट आ गई है, then one should expect deduction, a certain result. This involves the use of if then logic, यानी कि if then logic means if भी हो सकता है, then भी हो सकता है. ये अपनी हाइपोथेसिस को वाज़े करने के लिए डिडक्शंस जो है वो ड्रॉन की जाती हैं. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन, यानी एक प्रैक्टिकल वर्क आ जाता है. द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज़ एक्सपेरिमेंटेशन. ये सबसे अहम जो है वो स्टेप है. बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू सी इफ़ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट, यानी कि एक्सपेरिमेंट इसलिए कंडक्ट किए जाते हैं ये डिक्लेयर करने के लिए कि हाइपोथेसिस बिल्कुल एक्यूरेट थी या गलत थी. द डिडक्शंस विच आर ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस आर सब्जेक्टेड टू राइगरस टेस्टिंग, यानी फिर टेस्ट होते हैं कि वेदर जो डिडक्शंस हमने ड्रॉन किए हैं हाइपोथेसिस के वो ठीक हैं या नहीं है. थ्रू एक्सपेरिमेंटेशंस बायोलॉजिस्ट लर्न्स विच हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट, यानी कि जो डिफरेंट हमारे पास स्टेटमेंट्स आई हैं हाइपोथेसिस की वो जानने के लिए कि वो बिल्कुल ठीक हैं या नहीं है, तो हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड, जो इनकरेक्ट हाइपोथेसिस होती है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है. एंड द वन विच प्रूव्स करेक्ट इज़ एक्सेप्टेड, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो जाए कि ये बिल्कुल ठीक है तो वो हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है. एन एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस मेक्स फर्दर प्रेडिक्शंस दैट प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट वे टू फर्दर टेस्ट इट्स वैलिडिटी. उसके बाद क्या होता है कि हमें रिजल्ट मिल जाता है एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि
एक हाइपोथेसिस हमारी करेक्ट थी और हमने जो इसके ऊपर जो टेस्टिंग की है, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, वो भी ठीक है, तो हमें एक फर्दर रिजल्ट की कंपाइलिंग मिल जाती है। सिक्स स्टेप इज समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। बायोलॉजिस्ट गैदर actual quantitative data from experiments. Data for each of groups are then averaged and compared statistically. उसके बाद ये होता है एक्सपेरिमेंट के बाद डिफरेंट रिजल्ट्स आर गैदर, मतलब जितना भी डाटा कलेक्ट होता है उसको एक रिजल्ट्स की कंपाइलेशन में हम ले जाते हैं। टू ड्रॉ कंक्लूजन्स बायोलॉजिस्ट ऑल्सो यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी कि अगर हमने इससे रिजल्ट यानी कि डिक्लेयर करने हैं तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि मुख्तलिफ डाटा इकट्ठा करते हैं जो उन्होंने हाइपोथेसिस से कंक्लूड किया है, एक्सपेरिमेंटेशन से कंक्लूड किया है, तो ताकि एक फ़ाइनल वो आगे प्रोसीड कर सके। What is control in experiments? In science, when doing the experiment, it must be a controlled experiment. The scientist must contrast an experimental group with a control group. The two groups are treated exactly alike except for one variable being tested. For example, in an experiment, to test the necessity of the carbon dioxide for photosynthesis, one can contrast the control group, a plant with freely available carbon dioxide, with an experimental group, a plant with no carbon dioxide available. The necessity of carbon dioxide will be proved when photosynthesis occurs in the control group and does not occur in the experimental ग्रुप। यानी यहाँ पे बताया हुआ है कि एक्सपेरिमेंट किस तरह किया जाता है, दो चीज़ों को कंपेयर करके। एक प्लांट ऐसा ले जाए जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑलमोस्ट 100% है, और दूसरा प्लांट ऐसा है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0% है। तो साइंटिस्ट ऐसे एक्सपेरिमेंट करें कि देखें कि किसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रेजेंट है। नेक्स्ट द सेवंथ स्टेप ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड इज़ रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स को रिपोर्ट करना। अब हमारे पास समराइजेशन हो गई हुई है रिजल्ट्स की, हमने उनको गैदर कर लिया है, अब जस्ट रिपोर्ट करना है, एक फ़ाइनल रिपोर्ट देनी है रिजल्ट की कि क्या एक्सपेरिमेंटेशन के बाद और समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स के बाद एक रिपोर्ट निकली है। बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स, in talks at national and international meetings, and in seminars at college and universities. Publishing of results is an essential part of scientific method. It allows other people to verify the results or apply the knowledge to solve other problems. यानी कि कोई भी एक conclusion निकला है, एक result निकला है, उसके बाद उसको फाइनल एक रिपोर्टिंग दी जाती है, यानी कि उनको इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी रिपोर्ट किया जाता है, फिर सेमिनार्स में भी दिया जाता है, ताकि दूसरे लोग जो है ना इस रिज़ल्ट की मदद से अपनी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। इन्होंने एक एग्जांपल दी है मेन बायोलॉजिकल मेथड की, स्टडी ऑफ मलेरिया। वी नो मलेरिया इज़ अ कॉमन डिजीज़ इन मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान। यानी हमें पता है कि जो मलेरिया है वो बढ़ती हुई एक डिज़ीज़ है और एक कॉमन डिजीज़ है पाकिस्तान में। वी विल गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ दिस डिजीज़ टू नो दैट हाउ बायोलॉजिकल सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कंसर्निंग द कॉज एंड ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। इसकी उन्होंने एग्जांपल इसलिए दी है ताकि हम इसे पता चला सकें कि बायोलॉजिकल मेथड में इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया है। इन एंशिएंट टाइम्स मोर देन 2000 ईयर्स अगो, यानी कि कदीम 2000 साल पहले की बात है, फिजिशियंस वर फेमिलियर विद मलेरिया, यानी 2000 साल पहले से ही जो है वो मलेरिया की बीमारी इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। दे डिस्क्राइब्ड इट एज अ डिजीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर विद रिक्योरिंग अटैक्स, यानी कि वो इसको डिस्क्राइब करते थे कि ये जस्ट फीवर की बीमारी है और ये ना सिंपल अटैक्स होते हैं जो कि क्योर भी हो सकते हैं। They also observed that the disease was more common among people living in low marshy areas, and it was thought that the stagnant water of marshes poisoned the air, and as a result of breathing in this bad air, people got malaria। यानी कि पहले predictions ये होती थी ज़माने की कि जो मार्शी एरियाज़ में लो डाउनटाउन में रहते थे लोग, वहाँ पे गंदा पानी होने की वजह से, कीचड़ वाला पानी होने की वजह से जो है हमारी जो एयर है वो पॉल्यूटेड हो जाती थी, और फिर उसके बाद एज एन रिजल्ट people get malaria. Mala means bad and area means air. This belief led to the name of this disease. The Italian word mala means bad and area means air. This is an important MCQ. For further clarification of the observation, some volunteers drank stagnant water from the marshes. They did not develop malaria. यानी कि कई मतलब साइंटिस्ट ने था फिर
ये किया अपनी बात को क्लैरिफाई करने के लिए, वही स्टैग्नेंट वाटर पिया, लेकिन उनको मलेरिया नहीं हुआ। In the 17th century, when the New World America was discovered, many plants from America were sent back to Europe to be used as medicines. यानी 17th century जब न्यू अमेरिका डिस्कवर हुआ, यानी कि वजूद में आया, तो बहुत से प्लांट्स जो है ना वो अमेरिका से यूरोप भेजे गए वापस मेडिसिन बनाने के लिए। द बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज क्वीना क्वीना वॉज वेरी सुटेबल फॉर क्योरिंग फीवर्स। यानी क्वीना क्वीना एक ऐसी बार्क थी, ऐसी बार्क जो होती है वो दरख्त के हिस्से को कहते हैं बार्क, जो उसके ऊपर लेयर होती है उसको बार्क कहते हैं, तो उसको इस्तेमाल करते थे फीवर को क्योर करने में। It was so beneficial that soon it was impossible to carry enough bark to Europe. Some dishonest merchants began to substitute the bark of another tree, which is cinchona, which closely resembled Quina quina। यानी कि उन्होंने फिर ये हुआ कि सिनकोना bark भी सेम वैसी थी, तो उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। This dishonesty proved much valuable for mankind। यानी ये डिसऑनेस्टी थी कि उन्होंने वैसी ही एक बार्क निकाल दी, क्योंकि क्वीना क्वीना वॉज वेरी हार्ड टू टेक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बिकॉज वो इतनी बड़ी बार्क्स थी। सिनकोना बार्क वॉज फाउंड टू बी द एक्सीलेंट फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। सिनकोना बार्क जो थी वो मतलब कि यूज़फुल साबित हुई मलेरिया के ट्रीटमेंट में। We now know the reason cinchona bark contains quinine that is effective in treating the disease। सिनकोना बार्क में एक ऐसी क्विनीन, एक ऐसी मेडिसिन मौजूद थी जो कि डिज़ीज़ को क्योर करने में हेल्प आउट कर रही थी। तो दिस इज़ द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मलेरिया, कि हाउ it started, what scientists believe, what is malaria, and how it should be cured. At that time, physicians treated malaria with cinchona without understanding the cause of malaria। यानी उस वक़्त में जो है वो फिर फिजिशियंस ने ये किया कि मलेरिया को जो है वो सिनकोना बार की मदद से क्योर करना स्टार्ट कर दिया। ये नहीं पता लगाया कि मलेरिया की असल वजह है क्या। 200 ईयर्स लेटर, उसके बाद 200 साल के बाद, इट वाज फाउंड दैट सम डिजीज़ेज़ आर कॉज्ड बाय टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद ये डिक्लेयर हुआ कि कुछ जो बीमारियां हैं वो छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से क्रिएट होती हैं। आफ्टर दिस डिस्कवरी इट ऑल्सो बिकम अ बिलीव दैट मलेरिया टू माइट बी कॉज बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद ये भी डिक्लेयर हो गया कि जो ये मलेरिया एक छोटे ऑर्गेनिज्म से कॉज होता है। इन 1878 अ फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवेरॉन began to search the cause of malaria। He took a small amount of blood from a malarial patient and examined it under microscope। उसने क्या किया, मलेरियल पेशेंट जो है का ब्लड लिया और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया। ही नोटिस सम टाइनी लिविंग क्रिएचर्स। उसने क्या किया, उसमें टाइनी लिविंग क्रिएचर्स मूव होते हुए दिखाई दिए। हिज डिस्कवरी वॉज नॉट बिलीव्ड बाय अदर साइंटिस्ट। उसकी जो ये डिस्कवरी थी वो दूसरे साइंटिस्ट बिलीव नहीं कर रहे थे। 2 years later another physician saw the same creatures इन द ब्लड ऑफ अनदर मलेरियल पेशेंट। 2 साल के बाद एक और फिजिशियन ने जो है ना सेम उसी में उसके मलेरियल पेशेंट के ब्लड में क्रिएचर्स देखे। 3 years after the second discovery, the same creatures were observed for the third time and the organism was given a name Plasmodium। यानी तीसरी दफ़ा भी जब एक्सपेरिमेंट किया गया और मलेरियल पेशेंट के ब्लड को देखा गया तो फिर भी उसमें लिविंग क्रिएचर्स जो है वो मूव करते हुए नज़र आए, और फिर उसके बाद ये है कि उस ऑर्गेनिज्म को नाम दिया गया प्लाज्मोडियम का। इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th century many different causes of malaria were being suggested। By that time there were 4 major observations about malaria। अब वो 4 major observations क्या थी? Malaria and marshy areas have some relation। यानी मलेरिया और जो मार्शी प्लेसेस हैं यानी कीचड़ वाली जगह, उनकी कोई आपस में रिलेशन है। क्विनीन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। क्विनीन जो सिनकोना बार्क से मिली थी वो इफ़ेक्टिव है मलेरिया को ट्रीट करने में। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शीज डज़ नॉट कॉज मलेरिया। यानी मार्शी प्लेसेस स्टेगनेंट वाटर को ड्रिंक करने से कोई मलेरिया नहीं होता। और प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स दैट इज़ द लिविंग क्रिएचर्स।
लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में देखे जा सकते थे, जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं. वी नो दैट अ साइंटिस्ट यूजेस वट एवर इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जर्वेशन ही हैज़ and makes one or more hypotheses. The hypothesis made in this case was plasmodium is the cause of malaria, that those living creatures are is the cause of malaria. Scientist does not know whether his hypothesis is true or not, but he accepts it may be true and makes deductions. One of the deductions from the above hypothesis was if plasmodium is the cause of malaria, then all person will ill with malaria should have plasmodium in their blood. यानी जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं फिर उसके अंदर वो लिविंग क्रिएचर्स मौजूद होंगे. एक ये डिडक्शन थी. The next step was to test the deduction through experiment which were designed as blood of 100 malarial patients was examined under microscope. For the purpose of having a control group, the blood of 100 healthy person was also examined under microscope. यानी एक्सपेरिमेंट करने के लिए 100 लोग जो पेशेंट्स से मलेरिया उनका भी ब्लड लिया गया और 100 हेल्दी पर्सनस थे उनका भी ब्लड लिया गया और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखा गया. द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट शोड that almost all malaria patients had plasmodium in their blood, while 7 out of 100 healthy persons also had plasmodium in their blood. Now we know that plasmodium in the blood of healthy people was in incubation period, the period between the entry of parasite in host and appearance of symptoms. The results were quite convincing and proved that the hypothesis plasmodium is the cause of malaria was true. यानी कि फिर हमने जब रिज़ल्ट ड्रॉन किए यानी साइंटिस्ट ने रिज़ल्ट ड्रॉन किए उसमें ये पता चला कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया क्योंकि 7 आउट ऑफ 100 हेल्दी पीपल उनका भी ब्लड में प्लाज्मोडियम फाइंड किया गया क्योंकि मतलब वो इंक्यूबेशन पीरियड था, वो स्टार्टिंग पीरियड था कि मतलब उनको मॉस्किटो ने बाइट कर ली हुई थी. ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है वो उनकी बॉडी में एंटर हो चुके हुए थे लेकिन अभी सिम्टम स्टार्ट होने में टाइम था, इसलिए टेस्ट में रिपोर्ट आने में भी टाइम लगना था. सो इट प्रूव्ड दैट हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया ट्रू. यानी ये बिल्कुल एक ट्रू ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन थी. मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल दैन एनी अदर डिजीज़. द अकाउंट ऑफ मलेरिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड हाउ such problems are solved. Malaria has killed more than मिलियंस ऑफ पीपल. यानी कि ये भी चीज़ है कि मलेरिया ने काफ़ी लोगों की जो है ना डेथ क्रिएट की थी और उसके बाद द काउंट ऑफ मलेरिया इज़ एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड ऑफ हाउ सच प्रॉब्लम्स आर सॉल्व. यानी इसी तरह पता चल गया कि मलेरिया की वजह से काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई है और किस वजह से हुई है क्योंकि उसमें लिविंग क्रिएचर्स थे और प्लाज्मोडियम जो है वो ब्लड में फाइंड आउट किया गया था. तो लिहाजा मलेरिया वॉज अ वेरी डेंजरस डिजीज़. उसके बाद ये बायोलॉजिकल मेथड से प्रूव हो गया कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया. Okay students, I hope you have understood today's lecture very well. If you have any question regarding my lecture, put in the comment box and share your views also. Thank you for watching my lecture. Don't forget to like and subscribe my channel. Keep visiting my channel for more lectures. Thank you.